ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਪਿੰਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 40-40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
जिन्हों ने इस धरती उत्ते शरीर करके 42 साल उम्र बतीत की। 1666 ईस्वी विच पातशाह का प्रकाश होया। 1708 ईस्वी तक महाराज जी शरीर विच रहे। कुल तकरीबन 42 साल की उम्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस धरती पर बतीत की। और साध संगत 42 सालों में जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए, दुनिया के इतिहास में ना पहला कदे होया ते सदियां गुजर जाएंगियां, साध संगत ना कोई कर सकेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाई बड़े बड़े धर्मां दे विद्वानां ने, फिलासफर ने की। तीन तरह के व्यक्ति संसार में शोभा पाते हैं। एक वो वडियाई बंदे नूं मिलती है जिस बंदे दे अपने भावें कोई चंगे कर्म नहीं, आप कोई चंगे कर्मां की शख्सियत नहीं, पर उहदे प्यो दादियां ने कोई कुर्बानी की होवे, कोई चंगा कर्म किया होवे, तो प्यो दादियां की शख्सियत नूं चेते करके लोग वडियाई करते हैं। ये फलाने बंदे का पुत्र है, ये फलाने बंदे का पुत्र है। एक बंदे वो ने जिन्हां की वडियाई साध संगत प्यो या दादे करके हुंदी है, जिन्हां दे प्यो दादियां ने कोई बहादुरी की होवे। साध संगत उन्होंने पोतियां नूं, पुत्तां नूं, पड़पोतियां नूं वडियाई मिलती रहती है। ये फलाने बंदे का पुत्र है क्योंकि उहदे दादे पड़दादियां ने कोई बहादुरी की है। और दूसरे किस्म के वो लोग ने साध संगत जिन्हों ने प्यो दादियां पड़दादियां की कोई कुर्बानी, कोई बहादुरी, कोई शख्सियत नहीं, और वो बंदे ने खुद जीवन में कोई ऐसा कारनामा किया है, उहदे परिवार की वडियाई होने लग पई। उन्होंने लोग उसकी बहादुरी करके उन्होंने शोभा मिलने लग पई। कोई ऐसा कर्म शख्सियत करके वो बंदे तो हो जाए, लोग उसकी वडियाई करते हैं। ये फलाना बंदा है, जिथे जाता है साध संगत उन्होंने सैलीब्रिटी मन्निया जाता है, लोग उसकी शोभा वडियाई करते हैं। तीजे किस्म के वो बंदे ने जिन्हों की अपनी कोई वडियाई, कोई शख्सियत, कोई कर्म कारनामा नहीं, कोई बहादुरी, कोई कुर्बानी नहीं। वो बंदे कई बार पुत्तां करके मशहूर हो जाते, पुत्रां ते पोतियां करके। लोग कहते हैं फलाने का दादा है। साध संगत 84 के कांड तो बाद शहीद सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह की शोभा हुई, और साध संगत वो सतवंत सिंह करके उसके प्यो नूं अज तक मान मिलता रहा। लोग हर सभा, हर समागम में सरोपा पाते रहे, ये शहीद सतवंत सिंह के पिता जी हैं। इसलिए कई बंदियां की वडियाई जिहड़ी वो पुत्तां करके हो जाती, पोतरियां करके होंदी। तीन तरह के बंदियां की शख्सियत है। एक बंदे की वडियाई प्यो दादियां करके, एक बंदे की वडियाई अपने करके, एक बंदे की वडियाई कई बार अपने करके नहीं, अपने पुत्तां पोतियां करके हुंदी है। पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां की वडियाई वेखो साध संगत। एक सिख कौम के विद्वान होए ने प्यारा सिंह पदम, उन्होंने किताब लिखी है जहाज साहिबजादे। उस किताब की भूमिका में वो विद्वान लिख रहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत धरती पर बड़ी विलक्षण एहसास है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई तिनों पक्षों तो विचार के वेखो साध संगत। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शोभा ते वडियाई की गल चलेगी, उदों दुनिया ये गल कहेगी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पड़दादा महान सूरवीर योद्धा शहीदां का सरताज होया, जिन्हें तत्ती तवी ते बह के तत्ती रेत सीस विच पवाई, शहादत का जाम पी के गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां के सरताज बने। वो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पड़दादा जी लगते, पड़दादे करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत वडियाई होएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पड़दादा शहीदां का सरताज है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पड़दादे की वडियाई होएगी। दुनिया हाथ जोड़ के कहेगी धरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतक हर।
दुनिया हथ जोड़ के गावेगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पड़दादे की महिमा। जदों लोग हथ जोड़ के कहणगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तत्त विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। गुरु अर्जन देव महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पड़दादा लगते, कल्ले पड़दादे की वडियाई नहीं, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई चली तो दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह के दादे की बहादुरी। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, 4 जंगां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने लड़ियां, 4 जंगां में जित प्राप्त की। इत्थे ही बस नहीं, ग्वालियर के किले विचों 52 राजे मुक्त करवाए और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दादे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को दुनिया बंदी छोड़ दादा करके कहती है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सतगुर बावन चंदनों वास सुवास करे लाखीणा, सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे ओढ़ीणा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दादा ते दादे की वडियाई वो बंदी छोड़ दादा है। फिर साध संगत दादे की वडियाई निकली। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पिता धन गुरु तेग बहादुर महाराज साध संगत त्याग की मूर्त ने, विराग की मूर्त ने और बहादुरी की मूर्त ने। साध संगत भर जवानी में पैर रखे ते अपनी शस्त्र विद्या तेग का लोहा मनाया। दुनिया हाथ जोड़ के कहने लग पई धन गुरु तेग बहादुर। और साध संगत फिर तिलक ते जंजू वास्ते शीश की कुर्बानी की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पिता धन गुरु तेग बहादुर, पिता की वडियाई वेखो। कुल दुनिया गाएगी तिलक जंजू रखा प्रभ धागा, किन्नो वड्डो कलू में साधा। कुल दुनिया कहेगी तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोग है सब जग भयो, जय 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 सो लोग। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पिता की वडियाई कुल दुनिया कहती है। श्री हरकृष्ण ते ही है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे घर नौन दियावे ताए। एक बार एकाग्रचित होकर प्यार नाल पढ़ियो, सारे प्यार में भेज के कहो तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर, तेग बहादुर कर नौन दियावे ताए, तेग बहादुर सिमरे गुरु तेग बहादुर सिमरे कर नौन दियावे, तेग बहादुर सिमरे, तेग गज के श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि बाबा श्री हरि जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे जिस डिठे सब, तेग बहादुर सिमरे, तेग सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरे, तेग बहादुर सिमरे सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरे, तेग गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई पिता गुरु तेग बहादुर महाराज है।
साध संगत दुनिया कहती है तेग बहादुर सिमरे घर नौ नित आवे ताहे सब थाई होए सहाय तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किन्नो बड़ो कलू में साका साधन हेत कीती जिन करी सीस दिया पर सी ना बुझी। फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वड्याई कली पड़दादे दादे या पिताजी करके नहीं, पातशाह की अपनी शख्सियत देखो। साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज 42 साल शरीर में रहे और 42 सालों में जो कुछ करके विखाया कुल दुनिया संसार में हैरान हो गई। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा ना कोई होया ना कोई धरती पे हो सकता है। ये गल साध संगत आपां नहीं कल्ले कह रहे, आपां कहिए दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखां दे गुरु ने तां सिख वड्याई करते हैं। साध संगत वड्याई का स्वाद उदों आता है जदों दूजे धर्मां के लोग वड्याई कर। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई एक पक्का कट्टर मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी है, इस्लाम का पक्का धारनी है, 40 दिन रमजान के रोजे रखता है, अरबी फारसी का वो आलम फाजल विद्वान है। उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई की और चमकौर साहब की धरती ने उन्हें उस धरती की खाक चुक के मत्थे नूं लाई। ये गल उस धरती पे खलो के कही, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा पिता धरती पे कोई नहीं हो सकता, जिहदा हौसला इन्ना महान होवे। अपनी अखां के सामने पुत शहीद कराए ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरा हौसला कोई डुला नहीं सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई में वो मुसलमान लिखदा है, कहंदा दुनिया के लोगों करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। एक गल उन्हें लिखी, वो कहता दिलों साफ होके इंसाफ करियो, दिल दे विच कपट ना रखियो। ये ना कि असी मुसलमान असी हिंदू असी जैनी असी बौद्धी असी ईसाई असी मुसाई, वो भाई दिलों साफ होके इंसाफ करियो। कुल दुनिया का इतिहास एक पासे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास एक पासे, दिलों साफ होके इंसाफ करियो। हर बंदे की जुबान पे कोई गल आएगी, वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। ये गल मुसलमान ने लिखी। वो कहता इंसाफ करे जीमे जमाना तो यकीन है, मैनू विश्वास है दुनिया के लोग इंसाफ कर, इंसाफ करे जीमे जमाना तो यकीन है। कह देंगे कि गुरु गोविंद का सन्नी ही नहीं है, करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोविंद की वो कम है। हर जंद मेरे हाथों में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ तापे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला बहर को देखे, साहिल को मझधार को या लहर को देखे। अगली गल कहता हाशा किसी मुर्शद में ऐसा सयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा ज़िनहार नहीं। जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिखां नूं कीता, इन्ना प्यार दुनिया का कोई पीर अपने मुरीद नूं नहीं कर सकता। साध संगत उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई की। वो कहता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तू अपने पुत्रा नूं अखां दे सामने शहीद होंदियां बैठे, तेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। दुनिया में साध संगत कितना बड़ा कोई योद्धा हो, कितना बड़ा ताकतवर बंदा हो, हर बंदे की कमजोरी अपनी औलाद होती है। पुत्तां धीआं दे मोह विच बंदा कमजोर पै जाता है, और साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पुत्रां दे मोह विच कमजोर नहीं हुए। इतिहास पढ़ के देखो, हिंदुस्तान का एक विद्वान हुए, उनका नाम है लाला दौलत राय आर्य। वो कट्टर आर्य समाजी है। उन्हें एक किताब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जीवन से लिखी, सुभान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। ओदी भूमिका जो लिखदा है, कहता महाभारत की जंग में सब तो बड़ा योद्धा होया। वो योद्धा कौन? शस्त्र विद्या गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य इतना बड़ा योद्धा सी। 17 दिन महाभारती कुरुक्षेत्र की धरती पर जंग चलती रही, लखां बंदे मारे गए, पर वो जंग का कोई निर्णय ना होया, ना जित ना कोई हार। अखीर 5 पांडवां ने श्री कृष्ण को मुखातिब होकर गल की,
ਇਹ श्री कृष्ण तू द्वापर का अवतार है, ये जंग जिती नहीं जाती, सानू कोई राह दस। ते कृष्ण ने जवाब पता की दिता, वो पंजां पांडवां नूं कहंदा जिन्नी देर कौरवां बल दे पासे विद्या गुरु शस्त्र विद्या का गुरु द्रोणाचार्य खड़ा है, तुसीं जंग नहीं जित सकते। वो कहते द्रोणाचार्य नूं मार देने, फिर तब पंजां पांडवां नूं कृष्ण कहंदा तुहाडे विचों कोई बंदा द्रोणाचार्य नूं मार नहीं सकदा। उन्हें कहा जी जे द्रोणाचार्य ना मारिया गया जंग जिती नहीं जाएगी, जिन्नी देर द्रोणाचार्य खड़ा है उन्नी देर जंग का कोई करना नहीं, ते द्रोणाचार्य नूं असीं मार नहीं सकते। श्री कृष्ण फिर कोई राह दसो जंग किवें जिती। उन्हें राह पता की दस्या, श्री कृष्ण बोले योद्धा कितना भी बड़ा होवे, हर बंदे की कोई ना कोई कमजोरी हुंदी है। बड़े बड़े योद्धियां की कमजोरी उन्हां दी अपनी औलाद पुत्तां धीआं दा मोह हुंदा है। ते श्री कृष्ण द्वापर दे अवतार बोले कहते जाओ एक काम करो, द्रोणाचार्य दे रथ कोल जाके ना जदों कल जंग शुरू होवे ओदे रथ कोल जाके उच्ची आवाज च कहो मैदान दे जंग अंदर तेरा पुत्र मारिया गया है, ओदे पुत दा नाम ले लियो। एडा बड़ा योद्धा पुत दे मरण ते अपने कमजोर पै जाएगा। जदों कमजोर होया तुसीं जंग जित जाओगे। इहो कुछ महाभारत की जंग विच होया। उन्हां दी हिस्ट्री पढ़ के देखो साध संगत, 18वें दिन की जंग का बिगल बजया ते जदों जंग शुरू हुई ना युधिष्ठिर अपना रथ लेके द्रोणाचार्य कोल जाता है, कोल जाके उच्ची आवाज में कहता अश्वत्थामा हरो कुंजरो के नरो, कहता अश्वत्थामा मारिया गया है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम सी। जदों दे कन्ना च आवाज पई ना अश्वत्थामा मर गया है, एकदम होंका लेके कहता है मेरा पुत्र मारिया गया। बस इतना बड़ा योद्धा द्रोणाचार्य रथ तो गश के गिर गया, ओदे बेहोश होने की देर सी। मदन ने जंग महाभारत की जंग 5 पांडवां ने जित ली। साध संगत एडे बड़े बड़े योद्धे पुत्तां दे मोह विच कमजोर पै जाते, पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दुनिया दे वाहिद इक्को एक महान योद्धे हैं जिन्हां ने कल्ला कन्ना नाल सुनिया नहीं कि तुहाडे पुत्त मारे गए। बंदा सुन के बेहोश हो जाता है। साध संगत आपां भी गृहस्थी संसारी बैठे हैं, किसी बंदे नूं खबर मिल जाए ना तेरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया, ओदा घर पहुंचना औखा हो जाएगा, इत्थों घर तक जाना तुहाडा औखा हो जाएगा, लत्तां पैर फुल्लण लग पैणगे, बंदे दा साह नाल नहीं रलदा, ओनूं दुनिया भुल जाती है। पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने कल्ला सुनिया नहीं कन्ना नाल कि पुत्र शहीद हो गए ने। इतिहास पढ़ियो अखां नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पुत्र शहीद हुंदे देखे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी अखां दे सामने साहिबजादा अजीत सिंह दे सीने च बरछियां बजदियां रहियां, साहिबजादा जुझार सिंह दे सीने में तीर बजदे रहे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखते रहे, सैकड़े बरछियां दुश्मन ने बाबा अजीत सिंह दे मारे। पता क्यों? इतिहासकार लिखते हैं, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पूरा गुस्सा दुश्मन ने गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां ते कढे। इन्नी गल कह के बरछियां मारते रहे, ये गुरु गोबिंद के फर्जंद हैं, इनको काट डालो। गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां के सीने में बरछियां बजदियां रहियां, तीर बजते रहे। शहीद होने तो बाद भी जालम बरछियां मार मार के लंघदा गया, पर साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हौसला पस्त नहीं होया। जदों बाबा अजीत सिंह शहीद हो गए, कलगीधर पातशाह ने कच्ची गड़ी तो ऊंची आवाज में बोले सो निहाल गया, पर मगर खलोते। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जगारा छड्या, पर मगर खलोते किसी सिख कोलों सत श्री अकाल न बोलिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्यारे दया सिंह वाल वेख के कहा, दया सिंह मेरे पुत्तां दी शहादत उत्ते तुहाडे कोल जकारे मुक गए। पहला हर सिख दी शहादत ते जकारा छड्डदे सी, 5-5 दा जथा शहीद होया, तुसीं सत श्री अकाल दे जकारे छड्डे ने, मेरे पुत्रां दी वारी जकारे मुक गए। दया सिंह ने कहा, नहीं बादशाह जकारे मुक्के नहीं, एक प्यो दियां अखां दे सामने 2 जवान पुत शहीद होए ने, कलगियां वालिया जकारे मुक्के नहीं, जकारा छड्डण दा हौसला नहीं दिया सकया। बादशाह ने कहा, नहीं दया सिंह, उस हौसले नाल आप ही पातशाह ने बोले सो निहाल गए,
आपे ही हजूर ने सत श्री अकाल कहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है। अखां दे सामने पुत शहीद कराए पर पातशाह का हौसला पस्त ना होया। इत्थों तक जदों दोवां साहिबजादियां दीयां लाशां कोलों लंघे ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक बार भी नजर भर के नहीं वेख्या अपने पुत्तां। दया सिंह ने कहा महाराज लंघ तां इंज चले हो जिवें तुहाडे नाल कुछ होया ही ना हो। महाराज पिछा पलट के वेखो तां सही, तुहाडे पुत्रां दीयां लाशां पईयां ने, जालमां ने बरछियां मार मार के पातशाह सीना पाड़ दिता है। दसम पातशाह बोले रहण दे दया सिंह, पुत्तां तो प्यारे सिख भी तां पए ने, मैं सिखां नूं छड्ड के पुत्तां दा चेहरा क्यों वेखां, मैं सिखां नूं छड्ड के पुत्तां वल क्यों वेखां। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पुत्तां नालों वध सिखां नूं प्यार कीता है। जदों प्यारे दया सिंह ने कहा पातशाह मेरी एक अर्ज सी, तुहाडे पुत्रां दीयां लाशां वेखण योग नहीं, हर दुश्मन के लंघण वाले सिपाही ने बरछी मारी है, इन्नी रत तुहाडे पुत्रां दी डुल गई है। महाराज मेरी बेनती मनो, मैं दमाला खोल के दिना, दो टोटे करके पुत्रां दा मुंह ढक जाओ। बादशाह पिता वाला फर्ज तां निभाओ, कफन पाउण दी रस्म कर जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जवाब दिता नहीं हो दया सिंह, पुत्तां तो प्यारे सिख शहीद पे ने, मैं सिखां नूं छड्ड के पुत्तां ते कफन नहीं पा सकता। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज लंघण लगे, पातशाह ने इन्नी गल जरूर के गड़िए वेख लै हसदा जा रहा है, कहनी समय नूं मत्थे दी वट मेरे, और रोक सके ना मेरी मुस्कान ताई, लगे जिगर दे विच जो फट मेरे। इहदा मतलब पुत मरन दा फट ते लगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पर पातशाह दी अखां विच हजू नहीं, लगे जिगर दे विच जो फट मेरे। पातशाह ने कहा तेरी हिक ते गड़िए अजीत जुझार शहीद हो गए, पुत्र सोल जो रेशमी पट मेरे, कफन पाया नहीं इन्हां ते इस करके क्योंकि सिख नहीं इन्हां तो घट मेरे। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुरन लगे, दया सिंह के अंदरों ऐसी ताह निकली। अज एक प्यो ने हथी पाले जबान कीते पुत अखां दे सामने शहीद करा के तुर चले, एक बार भी पुत्तां दीयां लाशां वल नजर नहीं पाई। पिछों आवाज मार के दया सिंह बोले, कहंदे दादा दुनिया विच गरीब तो गरीब बंदा देता है, हर बंदे की लाश नूं कफन नसीब हो जाता है। तू दीन दुनी दा बादशाह, तेरे पुत कदे मखमली कपड़े पाउंदे सन, कदे तेरे पुत्तां लई पशमीने दीयां पोशाकां मखमल दे जोड़े, अज तेरे पुत्रां वास्ते 2 गज कपड़ा भी नहीं। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरी अर्ज मनो, गरीब तो गरीब बंदे नूं भी कफन मिलदा है, मैं दमाला दिना पुत्रां दा मुंह ढक जाओ। साध संगत जिहड़ी गल दया सिंह ने कही वो किसी भी प्यो के दिल ते टक पै सकता सी। प्यारे दया सिंह बोले, कहंदे गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दस कींदे पुत गए ने, गरीब तो गरीब मापे। हजूर ने बड़े ठम्मे नाल जवाब दिता, दया सिंह शहीदां दीयां लाशां कफनां दीयां मुताज नहीं होंदियां। इन्हें कहा महाराज मैं इसलिए कहता सी कि सवेरे दिन चढ़ना इल्ला आउणगियां, पातशाह तेरे पुत्रां दे फट बड़े लगे ने, इल्ला आउणगियां मांस नोच नोच के खाणगियां। पातशाह ने कहा खा लैण दे, और मेरे पुत्रां दा मांस नोच के इल्ला आकाश विच जिन्ना उच्चा उड़न गया, वेखी दया सिंघा एक दिन इन्ने ही उच्चे मेरे पंथ दे केसरी निशान साहब जी। साध संगत अज 300 फुट दे केसरी निशान ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानी करके चूलते, ये अपने करके नहीं, अपने बारे आपां सब नूं पता है। पिंड में छोटा जिहा गुरुद्वारा बनाइए, उहदे विच 2-2 3-3 धड़े खड़े हो जाते, उहदे विच पार्टी बाजी ईरखा द्वैश दूषणबाजी की नहीं आपां करते। ये तो केसरी निशान गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानी करते हैं। साध संगत ताइयों वो मुसलमान विद्वान लिख रहे, जदों तुसीं चमकौर साहब जाओ ना, उत्थे दर्शन करियो। चमकौर साहब गुरुद्वारा साहब की बड़ी फसील उत्ते एक बहुत वड्डी पंक्ति लिखी है,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਹਰ ਖੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸੀਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ मुसलमान की पंक्ति पढ़ो, बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। साध संगत, चमकौर साहब की धरती की खाक वो मुसलमान ने चुक के मथे न। खैर, मैं बेनती कर रहा सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई उन्होंने अपनी शख्सियत करके, बादशाह अमृत के दाते ने, बादशाह दरवेश ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सूरवीरां दे सूरवीर ने, दादियां दे दाते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई। एक छोटी जी गल होर ध्यान नाल सुणियो। जदों बादशाह नदेड़ साहब की धरती ते पहुंचे ना, इतिहास कहंदा उत्थे हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खुद बादशाही दवाई, जिहदी मदद करके उहदा राज दवाया। उहदे प्यो पिता औरंगजेब की गलती नहीं जताई, उहदे पुत्र की मदद करके बादशाह ने तखत दवाया। जिदन वो बादशाह का धन्यवाद शुकराना कर नंदेड़ साहब गया, उदन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल गया। कई एक दिन गोदावरी के कंढे बैठा, वो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सवाल करता है, कहना बादशाह तुहाडा जीवन भी अजीब कहानी है। महाराज तुसीं 42 साल की उम्र बतीत कर चुके हो। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, इन्हां 40-42 सालों में तुसीं बड़े उतार चढ़ाव देखे ने। कलगीधर पातशाह, कदे तू मखमली सेजां दा सुख माणे, कदे पशमीने दीयां पोशाकां पहनियां ने, कदे 1.25 लाख रुपए दे तख्त चंदन की चौकी ते तुसीं बैठे रहे, कदे तुहाडे सीस ते हीरे मोतियां जड़ चदोए झूलदे सन, कदे तुसीं प्रशादी हाथी की सवारी की है, 1.25 लाख रुपए का प्रशादी हाथी, 1.25 लाख का 5 कला शस्त्र, बादशाहां दे बादशाह रहे हो। पर बादशाह, कदे तेरे जीवन में इदां दे दिन भी आए जिदन बादशाही छड्डी, बादशाह तुहाडे कोल मखमली सेजां ते पशमीने दीयां पोशाकां दूर दी गल, तेरे पैरां विच जोड़ा भी नहीं सी, तेरे 4 पाले हुए पुत्र शहीद हो गए, तेरे कोल ना घोड़ा ना पैरां विच जोड़ा ना सीस ते कलगी। जिदन रोड़ां दी सेज ते सुत्ता है, पैरां विच कंडे चुभे सन, टिंड दा सराहना लेके माछी बड़े पे। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, बड़े उतार चढ़ाव देखे। बादशाह, कदे 4 पुत्रां नूं गोदी च खड़ाया, कदे 4 पुत्रां दी शहीदी वेखी। बादशाह, किन्ने बड़े दिन वेखे। ये पूरी जिंदगी में उतार चढ़ाव, बाद घाट, बादशाही ते दरवेशी सब कुछ वेखी है। अज महाराज तुसीं बैठे हो, अज की महसूस कर रहे हो? क्योंकि हर बंदा साध संगत जिंदगी में लाभ ते हानि का एनालिसिस करता है। मैनू जीवन च की प्रॉफिट होया, किहड़ी चीज़ का लाभ होया, कित्थे मैं गलती की है, जे मैं फलाना काम ना करता, जे फलानी जगह पे होना सी, जे फलाने वक्त आ चीज हो जाती, अज आ कुछ होना सी। बंदा जीवन में नाप तोल एनालिसिस करता है। ते बहादुर शाह पुछदा है, महाराज तुसीं इन्ना कुछ वेखे, बादशाही भी भोगी, रोड़ां दीयां सेज ते भी सुत्ता है, पैरां च कंडे भी वजे, बादशाह 4 पुत्रां दा प्यो बाप रहे, गोदी च खड़ाए, 4 पुत्र शहीद भी करा ले। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अज किहो जिहा महसूस हो रहा? कोई घाटा वाधा विचार है? अज तुहाडा मन की कहंदा है? कलगीधर पातशाह ने जवाब दिता, कहंदे बहादुर शाह तुम बिल्कुल सही पूछे। मैं बड़े उतार चढ़ाव देखे ने, बादशाही भी वेखी है, गरीबी भी वेखी है, मैं बादशाही ते दरवेशी वेखी है। कदे लोग पशमीने दीयां पोशाकां लगे खलोते सन, कदे पैरों में जोड़ा नहीं, कंडे बजे रोड़ा की सेज ते भी सुते, कदे थाल भोग प्रशादे दे मेरे सामने 36 प्रकार दे होंदे सन, कदे 8-8 महीने भुखा भी रहे। बड़ा कुछ उतार चढ़ाव वेखे। पर बहादुर शाह एक गल सुन, मैं पता की महसूस किया है? बादशाह कहते, सुन बहादुर शाह, कभी हम बुलंदी से गुजरे तो कभी हम बस्ती से गुजरे। मैं कदे अमीरी ते कभी दरवेशी क्यों गुजरे, कभी हम बुलंदी से गुजरे तो कभी हम बस्ती से गुजरे, पर जहां से भी गुजरे बड़ी मस्ती से गुजरे। मैं जिथों भी लंघे
बड़ी मस्ती नाल लंघिया, 4 पुत्रां नूं गोदी च बिठा के पालिया खवाया वड्डे कीता, उदों भी मस्त सी। और जिदन 2 पुत्रां दी लाशां कोलों लंघिया उदन भी मस्त लंघे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक विलक्षण शख्सियत। साध संगत, अज पातशाह का विआह पुरब है, मैं तुहाडी सुरत गुरु के लाहौर की धरती ते लेके जाना। आनंदपुर साहिब की धरती ते मां गुजरी के कोल रिश्ता आउंदा है। भाई हरजस जिहड़े लाहौर के रहने वाले, उन्हें अर्ज बेनती की, माता जी मेरी बच्ची ब्याहण के योग है, मेरे मन की तीव्र इच्छा है, मैं अपनी धी का विआह आनंद कारज छड्ड के तुहाडे गोबिंद राज नाल करां। धन मां गुजरी जी ने वचन कहे, भाई हरजस ने सानू विचार करने का वक्त दे। माता गुजरी के कोल विचार करने वाले एक शरीर ने, और धन माता गुजरी के सके भराता मामा कृपाल चंद। मामा कृपाल चंद नाल गल कीती, दोनों ने भैन भरा मां गुजरी ते मामा कृपाल चंद जी ने पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को बेनती की, जी भाई हरजस लाहौर के रहने वाले, उन्हें शुरू तो अरदास की है गुरु तेग बहादुर महाराज के वक्त तो वो अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इजाजत दे दी। भरे दरबार में शगन की रस्म हुई। 8-10 महीने ये रिश्ता साध संगत मंगनी गई। भाव सगन पाके वो रिश्ता कच्चा छड़ दिता। एक बेनती मैं तुहानू करांगा, तुहाडे च भी वड्डियां उम्रां दे सज्जन बैठे ने बुजुर्ग। अगे जमाना सी जदों रिश्ता करने तो बाद 6-6 महीने नहीं 6-6 साल लोग मंग के रखते थे। 6-6 साल रिश्ता होकर रिश्ते कच्चे रहते सन और लोग नियम में रहते सी। जेड़े पिंड में किसी की बच्ची धी का रिश्ता मंग देना, परत के लड़के वाले कदे उस पिंड के वसीमे तो नहीं सी लंघदा, लड़का कदे उस पिंड चों नहीं सी लंघदा। क्यों? इस पिंड में मंगया होया। साध संगत, ये लोगों के अंदर शर्म ते धर्म सी। जिन्नी देर समाज में शर्म ते धर्म रहता है, उन्नी देर समाज कायम रहता है। बादशाह ने कहा, शर्म धर्म तो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बेला लो, कादियां बामणा की गल थकी, अगत पड़े शैतान बेला। हुण लोगों के अंदर शर्म धर्म अलोप हो रहे। असी रिश्तियों की कदर करनी भुल गए। ये ठीक है, बच्चे बच्ची का रिश्ता एक दूजे की पसंद का पुछ के होना चाहिए, पर साध संगत ਉਹਦੇ अंदर कुछ नियम होने चाहिए। असी रिश्ता करते हैं सार एक दूजे को मोबाइल फोन नंबर देंगे हो, 99% लोगों के रिश्ते मोबाइल करके टुट जाते हैं। साध संगत, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ समाजिक तौर पर पहला पढ़ना रखने वालियां ने, वो ब्याह शादी तो पहला एक दूजे नाल साझ कर लेंगे ने, परत के परिवारों के पोल खुल जाते हैं और रिश्ते तार-तार हो जाते। एक जिंदगी में तुसी परिवारों वाले धीआं भैणां बैठे हो सत्कारयोग, ये चीज का संसार में जरूर ध्यान रखियो। साध संगत, जिहड़ी बच्ची अपने पेकिਆਂ के घर की कमजोरी सहुरिਆਂ नाल जां अपने घर वाले नाल साझी करन लग जाए, वो जिंदगी में कदे खुश नहीं रह सकती। इसका ख्याल रखना पेगा। जिहदे नाल तुहाडा अज रिश्ता जुड़िया, तुसीं 20-25 साल के परिवार नाल जुड़े रिश्ते दीयां कमजोरियां उहनूं दस्सण लग पे, ये अगे जाके तुहाडे वास्ते बड़े वड्डियां मुश्किलां खड़ियां होणगीਆਂ। अपने मापिਆਂ का सत्कार ते सन्मान ਧੀਆਂ ਦੇ हथ हुंदा है। ਜਿਹੜੀ ਧੀ अपने प्यो की पग नूं ਉੱਚਾ करना चाहे, साध संगत, वो प्यो की शोभा बनती है, प्यो की पग का ताज बनती है। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ रोल देण, उन्होंने कलयुग के अंदर साध संगत कोई बहुता मान नहीं देना। खैर, एक चीज का गुरेज रखना चाहिए, अपने मोबाइलों से पाबंदी करो। जिथे रिश्ता हो जाए उत्थे बहुती देर खुले मोबाइल नहीं चलने चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े रिश्ते तार-तार हो जाते। खैर, लोगों के अंदर शर्म धर्म सी, जुबान दे दी, लोग पक्के रहते सन। भाई परियां च रिश्ता किया है, बंदियां नूं जुबान दी है। अजकल के लोग सगन पा के घर आउंदे ने, शामां नूं जवाब दे देंगे, क्योंकि असीं जुबान दे पक्के नहीं। खैर, गुरु कृपा करे नियम विच रही। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सगन हो गया। कई महीने साध संगत रिश्ता पक्का रहे, महीनों के महीने गुजर गए। वक्त आए, भाई हरजस श्री आनंदपुर साहब आए, उन्होंने आके बेनती की, मां गुजरी जी बेनती है माता जी, हुण कोई ब्याह शादी की तरीक रखो। साध संगत में बह के तरीक निश्चित की गई। ते भाई हरजस ने सदा दिता, महाराज बरात लेके मेरे नगर लाहौर पहुंचो।
दसों पातशाह ने संगत में फैसला किया, कह लगे जी एक कर जाए, असी बरात लेके लाहौर नहीं आ सकते। महाराज क्यों? हजूर ने कहा हालत बहुते हालात चंगे नहीं, हालात ना साझ हैं। पहाड़ी राजिया नाल नित कोई ना कोई झगड़ा रहिंदा है, कदे रणजीत नगारे तो झगड़ा पैंदा है, कदे पहाड़ी कहलूर सत धारा का कला ही राजा मालक भीमचंद कहलूरिया वो मंत्रियों को घलदा है, ओदी नज़र साडे चंदोए उत्ते, ओदी नज़र साडे प्रशादी हाथी ते, ओदी महली नज़र साडे पंच कला शास्त्र ते राज भागदे है। इस धरती उत्ते सदा ही पहाड़ियां नाल कोई ना कोई खिंचोतान रहिंदी है। असी कुछ दिनों या महीनों वास्ते आनंदपुर साहब छड्ड के नहीं जा सकते। जे बरात लाहौर लेके जावांगे कई दिन रस्ते में लगणगे, कई दिन आउंदे लगणगे, असी बरात लेके लाहौर नहीं आ सकते। पातशाह फिर मेरे शरीके में किवें होएगा? हजूर ने कहा सब शरीका रिश्तेदारी इत्थे बुला लो, तुहाडा लाहौर असी आनंदपुर साहब दे कोल ही बसा लांगे। महाराज किथे? पातशाह ने थोड़े मील की बिथ उत्ते सिखां नूं हुक्म किया, भाई उत्थे बाजार बनाओ, वो जगह उत्ते आनंद कारी का प्रबंध करो, इदां दा शहर वसा दिओ, वेखण नूं इंज लगे भाई हर जस लाहौर वो नहीं, भाई हर जस दा लाहौर ये है। साध संगत आनंदपुर साहब तो सज्जे हथ कुछ मील उत्ते पातशाह का हुक्म बनया, हजूर ने शहर वसाया, आनंद कारी की तैयारी होने लग पई। हजूर ने कहा लो हर जस जी सब रिश्तेदारी ते सज्जन बुला लो, तुहाडा लाहौर इत्थे बस गए। उन्हें हाथ जोड़ के कहा महाराज नहीं, वो लाहौर लोकां दा हो सकदा है, आ लाहौर गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडा है। महाराज ये लाहौर लोकां दा नहीं, ये गुरु का लाहौर है। अज तुसीं जदों जाओगे ओदा नाम इतिहास में गुरु का लाहौर है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बरात लेके जगह ते पहुंचे, पहला गुरुद्वारा खब्बे हथ सेरा साहब आउंदा है, उदों मर्यादा सी साध संगत समाजिक तौर पर यह रीति रिवाज ने। हजूर की दस्तार ते सुंदर सेरा सजे, कलगीधर पातशाह अज माता जीतो नूं विआहण वास्ते गुरु के लाहौर गए, तरह तरह के पकवान मठियाइयां बाजार सजे हुए सन, भरपूर मेला बने। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बरात में साध संगत कले सोढ़ी वंश वाले नहीं, मां गुजरी ने सारिया गुरु वंशा के लोग परिवार वंशा सदियां 63 कुल के अंदरों गुरु अंगद देव महाराज की वंश के परिवार आए, भल्लियां की कुल विचों धन गुरु अमरदास महाराज की वंश के परिवार आए, सोढ़ियां के श्री गुरु रामदास महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अपना शरीका आया। साध संगत बेदी 63 भल्ले ते सोढ़ी चार गुरुआं दी वंशां विचों परिवार शरीका रिश्तेदारी पहुंची, बहुत भरमा इकट्ठ होया, बड़ी बड़ी बरात बन के गुरु के लाहौर गई। हुण एक इत्थे ध्यान नाल सुणो, इतिहास कहता है जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बरात लेके गए ना, आनंद कारज कराउण दी मर्यादा निभाउणी सी, उदों साध संगत बेदियां ने कहा असीं वड्डी कुल वाले, गुरु नानक साहब दी वंश है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडे आनंद कारज बेदियां दी कुल दा कोई सिख कराए, बेदियां दी कुल वाले तुहाडे आनंद कारज बेदियां दी कुल दे मसलन कराउणगे। ते दूजे पासे 63 क्यों महाराज साडा भी फर्ज बनता है, आनंद कारज की सेवा सानू दिओ। ते साध संगत भल्ले धन गुरु अमरदास महाराज जिन्हां तो सोढ़ियां नूं अगे गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी मिली, उन्होंने कहा महाराज असीं भी तो उहो जिहे वंश वाले, ये सेवा सानू बख्श। जदों बेदी 63 भल्ले ते सोढ़ियां विच आनंद कारज की सेवा की गल चली, उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वचन कहे, कहते दुग्धां विच बहण की जरूरत नहीं, आओ गुरु नानक के चरणों का ध्यान धर के पर्ची पा लेंगे। साध संगत उहदे विच 4 पर्चियां पई, एक बेदियां दी कुल दी, एक 63 धन गुरु अंगद देव महाराज, भल्ले श्री गुरु अमरदास महाराज, सोढ़ियां दी वंश धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज। 4 वंशां दीयां 4 पर्चियां, एक पर्ची श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु नानक की साध संगत के नाम लिखी। पातशाह ने 5 पर्चियां पाते, क्या जिस दे नाम की पर्ची आएगी उहिओ आनंद कारज की सेवा निभाएगा। तुसीं हैरान होवोगे, गुरु नानक साहब के घर में साध संगत ने याद रखियो, इत्थे कुल वंश का मान जरूर है, आपां उस तो दूर नहीं जा सकते।
ये गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कही, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया। ਇਹਦਾ मतलब कुल भी धनता योग है। जे कोई बेदी त्रिहण भले सोटी वो कुल साध संगत धनता योग है। क्यों? उस कुल में मेरे गुरु का जन्म होया। धन धन माता धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। पर सतगुरु जी ने मान दिता कुल नालों वड्डी गुरु नानक की संगत है। साध संगत मान कुल नूं जरूर है, पर कुल ते वंश नालों वड्डा मान गुरु नानक की संगत नूं मिले। जदों पातशाह ने 5 पर्चियां पाईयां ना, 5 पर्चियां पा के अरदास हुई ते जदों एक सिख कोलों किसी कोलों पर्ची चुकवाई, आ पर्ची गुरु की दिशा वालों चुक भी किहदे नाम की आउंदी है? साध संगत। पर्ची साध संगत के नाम की निकली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्ची 'ਚ लिखिया सी आनंद कारज साध संगत का है। क्योंकि कुल ते वंश नालों वड्डा दर्जा साध संगत नूं है। गुरु नानक के घर में कुल वंश नालों वड्डा मान साध संगत नूं मिलदा। जदों साध संगत के नाम की पर्ची आई, फिर पातशाह ने सब तो सियाने 6वें पातशाह दीआं बख्शिशां वाले, जिन्हां दा जन्म 6वें पातशाह के बचनां नाल होया सी, जिन्हां दा नाम गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने रखिया सी, मालवे की धरती ते जिन्हां नूं सिक्खी बख्शी सी साध संगत। फिर पातशाह ने सेवा लाई, कहते भाई रूप चंद जी नूं बुलाओ, भाई रूपे नूं सदो। भाई रूपा उस वक्त वड्डी उम्र दे सन। हजूर ने कहा भाई रूप चंद जी तुहानूं साडे दाते गुरु दा मान प्राप्त है। इंज करो तुसीं वड्डे हो, अनंत कारज लावा पढ़न ते कराउण दी सेवा भाई रूप चंद नूं दित्ती है। साध संगत ओ भाई रूप चंद जिन्हां दी मां दा जदों आनंद कारज होया ना भाई साधु जी दे नाल जिस दिन लावां होईयां, एक बेनती मैं इत्थे होर करांगा, शायद जिंदगी च तुहाडे काम आवे, क्योंकि आनंद कारजां ते बहण दा सानूं मौका घट मिलदा है। असीं लोग पैलसां में ढोल ढमके नच्चण गाण दा वक्त हर बंदे कोल है। उदन ब्याहां शादियां ते सवाए नवें कपड़े पाण जां भंगड़े जां सूट पाण तो इलावा होर कोई काम नहीं। साध संगत असलीयत आनंद कारजां दा काम है। आनंद कारजां ते 10 बंदे लड़की वालों जाणगे, 10 लड़के वालों, बाकी सारे दा सारा कोड़मा पैलस में खाना ही खाता है। साध संगत देखो मर्यादा है। आनंद कारज ते संगत बद होनी चाहिए। अपने बच्चे बच्चियां नूं आनंद कारज लावां ते लिहाया करो, इन्हां नूं मर्यादा का पता लगे। अज हुण वीडियो वायरल हुई है लड़के दे आनंद कारज ते साध संगत तुहानूं पता ही नहीं, मैं सज्जे घुम के लाम लैनी के खब्बे, वो जदों दूजी दिशा घूमन लगो तो लड़की सियाणी सी उहने झग्गा खिंच लिया, उहने कहा इधर पासे नूं तुर, मियां इधर किधर चले। कहण तो भाव साध संगत सानूं बच्चिआं नूं आनंद कारज ते लिआउणा चाहीदा तां जो मर्यादा का पता लगे। खैर एक चीज तुहाडे काम आए, आनंद कारज दा वो दिन है जिदन जिस बच्चे बच्ची का आनंद कारज हुंदा है। साध संगत जो मन में धार ले वो कुछ उसनूं गुरु के दर तो उस दिन मिलता है। जे मन सत्याग हो, जो मन में धारे, ये ना हो जिस बच्ची का आनंद कारज लावां हो रही ओदा ध्यान वीडियोग्राफी वाल या कैमरे वाल होवे, लावां दे वेले ध्यान गुरु के चरणों च, और जो मन में धारणों को मिलता है। भाई साधु का जदों लावां आनंद कारज होया, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के चरणों च गए। पातशाह ने खुश होकर कहा बेटा अज तुहाडा आनंद कारज है, मंगो की चाहिए। हाथ जोड़ के उस बीबी ने कहा पातशाह एक कृपा करो, मेरी कुल में सिक्खी बख्श दे। 6वें पातशाह ने वचन कहती है तेरी कुल में तो सिक्खी चांदी की तरह जम गई। चांदी उदों उस वक्त सब तो कीमती गहना मन्निया जाता सी, अज सोने नूं प्रेफरेंस है, कदे चांदी के गहने नूं मान सी। पातशाह ने कहा चांदी की तरह सिक्खी चमकेगी। और हजूर के वचन होए 6वें पातशाह दे, वो बीबी ते भाई साधु के घर 1 साल बाद पुत्र होया। जदों नाम रखाउण आए ना, 6वें पातशाह ने कहा वो तो उतने रख दिता सी। महाराज केड़ा नाम? कहते कहा सी ना तेरी कुल में सिक्खी चांदी की तरह चमकेगी। जा बेटा जे तेरे घर में हुण पुत्र होया इहदा नाम रख दिओ भाई रूपा। रूपे का अर्थ हुंदा चांदी, कहते दा नाम रख दिओ रूपा। सिक्खी चांदी की तरह चमके। अज मालवे में जदों जाओगे ना, लुधियाना टप्पे मोगे वाले पासे, उधर तुसीं संबंधित कई बार जाते रहते हो। तख्त श्री दमदमा साहिब है,
मोगे तो साध संगत अगे खलो के देखो भाई रूपा जिन्हों पातशाह ने उन्होंने मां को कहा सी आनंद कारज वेले ते ये सिक्खी चंदी की तरह तेरी खुल चमकेगी। अज मोगे तो ध्यान मार के देखियो एक नहीं अनेकों पिंडों की वंश के नाम के वास्ते उत्थे पिंड पढ़ियो भाई रूपा, भाई की समाध, ठट्ठी भाई बवीहा, भाई तलवंडी, भाई भगता, भाई जिन्ने पिंड साध संगत नजर आउणगे जिन्हों के नाम नाल भाई लगता है वो भाई रूपा की अंश वंश के पिंड अज भी वसते। उसे भाई रूपे को दसम पातशाह ने गुरु के लाहौर सेवा ले भाई रूपचंद जी तुसी लामा पढ़ो, लामा पढ़ो आनंद कारज कराउण की सेवा भाई रूपे ने की। जदों पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी लामा माता जीतो जी के नाल हो गई, आनंद कारज ब्याह होया, सारी संगत ने खुशी में पढ़िया ब्याह हुआ, मेरे बाबला गुरमुखे हाथ पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया, बड़िया गुर ज्ञान अंधेरा बिरसिया, हर रतन पदार्थ लाथा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मां गुजरी को बधाइयां दित्तियां और बधाइयां दित्तियां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते पातशाह दे महल माता जीतो दे आनंद कारज दियां ते साध संगत उदों पहाड़ की संगत जिहड़ी आनंद कारज वेखण आई ना कहंदे उन्हां हाथ जोड़ के बेनती की। पहला श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों घोड़े ते सवार होए पातशाह की बरात जिहड़ी उदों खुशी में घोड़े ते एक पौड़ वजे। ये इतिहास साध संगत प्रसंग ढाडी सिंह आ गए ने तुहानूं सुणाउंदे रहिंदे ने। वो जदों पौड़ वजया उस धरती तो साध संगत पानी का सुमा फटिया। अज भी उत्थे पानी का उस तरह सुमा फटिया हो। पहाड़ियां ने बेनती की महाराज इस इलाके में इको चीज की कमी है, महाराज पानी की बड़ी दिक्कत है, साडे ते तरस करो, अज तुहाडा विआह आनंद कारज है, महाराज पानी की मुश्किल दूर कर दे। दसम पातशाह के हथ में जिहड़ी श्री साहब सी साध संगत उस वर्षी नाल पातशाह ने 3 टक एक पहाड़ी में मारे। हजूर ने कहा लो इसे धरती ते तरवैणी सद लांगे जिथे 3 नदियां डिगदियां ने, प्रयाग इलाहाबाद संगम। साध संगत तिन्ने नदियां पातशाह ने कहा तरवैणी इत्थे प्रगट होएगी जिथे 3 शमशीरां मारियां उत्थे दर्शन करो गुरु के लाहौर। वो 3 टक्कां विचों पहाड़ी विचों पानी सिमद है, ओदा नाम अज गुरुद्वारा तरवैणी साहब है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बख्शिश साध संगत सब कुछ संगत नूं मिले। जे आनंद कारजां ते पहाड़ियां नूं सब कुछ पातशाह ने दिता है, तुसीं तां गुरु ते शरधा रखण वाले सिख हो। साध संगत आओ आपां पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं वधाई दईए और श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो दात मंगीए। पातशाह साडी झोली में सिक्खी पा दिओ, साडी झोली में सिदक पा दिओ, साडे परिवारां नूं सिक्खी सिदक ते रहत बख्श दिओ। जिहदे घर विच रहत है साध संगत उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहुत प्यार करते। ये अरदास करो पातशाह कदे रहत तो दूर ना करो। एक तुहानूं बेनती करांगा, सब तो वध पातशाह ने सिखां नालों वध सिख दी रहत नूं प्यार कीता है। पुत्तां नालों वध सिखां नूं, सिखां नालों वध सिख दी रहत नूं। ये गल कह के कि रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा ना है। पातशाह ने इन्ना प्यार कीता है, साध संगत केसां दी रहत नूं इन्ना प्यार है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने केसां के नाम ते नाम रख दिता तख्त श्री केसगढ़ साहब। तुहानूं बेनती है साध संगत अपने केसां का सत्कार करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहानूं प्यार करन लग पैण। केसां का सत्कार करके वेखो, कलगियां वाला तुहानूं प्यार करन लग जाएगा। ये ना होवे केस बाहे ने ते नालियां विच कूड़े विच रुड़दे फिर। जिहड़े अमृतधारी उन्हां नूं पता है कपड़ा विछा के केसां विच कंघा करदे, जदों केस धो के हरे करने होण सुकाने होण तां भी पड़दे में धुप्पे बह के सुकाउंदे ने, नंगे सिर गलियां बाजारां विच नहीं, क्योंकि ये केसां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मान दिता है। केस गुरु की मोहर लै के नवाजे। इसलिए साध संगत मैं तो हैरान होना, कई बार पिंडां च रौला पै जी आ बाल बेच लो, कंघी वाले बाल बेच लो, पैसे मिलते हैं 1000 रुपए किलो माइयां बाल जोड़ के बेचण लग पई। माफ करियो जेड़ा अपने सिर के बाल बेचण लग जाए तुहाडे घर च सिक्खी कदे नहीं आ सकती। केसां का सत्कार करो। जिन्हें अमृत छके पहला साध संगत याद रखियो नंगे सिर वो कदे वाशरूम नहीं जाएगा। जिन्हें अमृत छकिया नंगे सिर प्रशादा नहीं छकदा। अमृत छकिया नंगे सिर कदे रसोई में नहीं जाएगा। पहला माइयां बड़ियां सियाड़ियां सन, बुजुर्ग बैठियां ने, रसोई में जाना प्रशादा बनाना पहला घर की माई ने कहना कड़े सिर ढक ला। क्यों? एक तो सत्कार है,
दूजा किते बाल किसी की रोटी भोजन सब्जी विच ना पै जाए। साध संगत जदों इन्ना कुछ सी, भावें घरां विच गरीबी सी पर घरां विच प्यार ते इतफाक सी। अज जदों दा नंगे सिर असीं रसोइयां विच खाना बनाउण ते खाण लग पए, तुहाडे घर विच गल कलेश भी वधे। क्यों? गुरु ने एक चीज छड़ दी कि दुकालम परनासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं कुते। सिखा तू रहत रख, गुरु तेरे अंग संग रहेगा। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का विआह पुरब है, अरदास करके अपना सिक्खी मंगनी है। आओ साध संगत जथा पहुंच गया, इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। एक पंक्ति अपन गज के कहिए तो खुशियां लईए, तुहाडी आवाज़ होनी चाहिए है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई में पहाड़िए गाते हैं। अज पातशाह का विआह पुरब है, आपां भी पातशाह की खुशी में गाइए। एक बार गज के प्यार नाल सारी संगत कहो, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल आप मुकद गज के। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को ऐसे गुर को धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। धन श्री गुरु ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुर को आप मुकद ऐसे गुर को बल बल आप मुकद मोहे तारे। सतगुरु कृपा करन, तुहाडी सारी संगत की हाजरी दरगाही प्रवान होवे। असीस दिओ, असीं कल्ले कथा करन जोगे ना रह जाइए। आप संगत की चरण धूड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल होवे। असीसां बख्शिओ। आने वाले दिनों में इस पावन स्थान तो धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला प्रकाश पर्व शताब्दी बड़ी श्रद्धा भावना नाल ते उत्साह नाल मनाई जाती है। तुहानूं लखां असीं संगतां नूं बेनती है, प्रबंध वालों बाबा जी वालों सारी तैयारी करके पोस्टर लग जाएंगे। प्रोग्राम 2 दिन का होवे, 4 दिन का होवे, तुसीं सारियां संगतां ने, क्योंकि पातशाह दे इत्थे चरण पए ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला आ रहा है अगले महीने, और तकड़े होकर आप अप्रैल ते मई में ये समागम मनाने ने। सारिया संगतां का धन्यवाद, वध तो वध सहयोग बख्शना। अगला प्रोग्राम सरवण करो पंथ के महान विद्वान यानी मलकीत सिंह जी पपराली, उन्होंने जथा पहुँच गए। अगला प्रोग्राम सरवण करो, शीश दिओ, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी